پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 26 جون کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ وینزویلا میں زلزلے سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش تاحال جاری۔ ایمرجنسی ورکرز وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں گرنے والی کئی منزلہ عمارتوں سے زخمی لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ The right mechanism to ensure the regional ceasefire. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. آبنائے ہرمز کے قریب جہاز پر حملہ، اقوام متحدہ نے ملاحوں کے انخلاء کا آپریشن روک دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے متنبع کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایک نئے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کا آخری مرحلہ واشنگٹن میں شروع۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک ایک پختہ ارادے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ Today will be the third day of 3 days of talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of interest of intent between the two countries that I think begin to outline a promising. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری معاہدے کے تحت IAEA کو تہران کی جوہری تنصیبات تک رسائی حاصل ہوگی۔ And this agreement expressly indicates that the nuclear part will be supervised, monitored by the IAEA. عاشورہ تقریبات پر پابندیوں کے خلاف افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے اندر سے آوازیں بلند، اور جانیے کربلا کے میدان سے 14,000 کلومیٹر دور ویسٹ انڈیز میں حسے یعنی غم حسین منانے کا 2 صدی پرانا منفرد انداز کیا ہے۔ جانیے مرثیہ کیا ہے اور اس کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی۔ یہ جو لفظ ہے مرثیہ، تو اس کے مطلب ہی ہے لیمنٹیشن، مطلب گریہ کرنا کسی کی موت کے اوپر، یا کوئی بھی ایسا سانحہ ہے اس کے اوپر جب غم کا اظہار کرتے ہیں، وہی مرثیہ اسی سے نکلا ہے۔ یہ بھگوان رام کے نام پر جمع ہونے والے عطیات کہاں گئے؟ رام مندر ٹرسٹ پر عطیات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات۔ انڈیا کے شہر ایودھیا میں موجود رام مندر کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ مندر اسی مقام پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں دسمبر 1992 تک بابری مسجد ہوا کرتی تھی۔ ایودھیا کے رام مندر کو انڈیا کے سب سے اہم مذہبی اور سیاسی پروجیکٹس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن اب اس کو دیے گئے ڈونیشنز اور ان کے حساب کتاب پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ووٹر ID، آدھار کارڈ یا پاسپورٹ، انڈیا میں کسی شخص کی شہریت کا حتمی ثبوت کیا ہے؟ وزارت خارجہ کے بیان پر انڈیا میں شہریت کی بحث کیوں؟ یہ بیان اس تنازع کے درمیان سامنے آیا ہے جب بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ انڈیا متعدد لوگوں کے بارے میں انڈین شہری نہ ہونے کا دعویٰ کر کے انہیں زبردستی سرحد پار بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تنازعات، سیلاب اور قحط۔ جنوبی سوڈان میں لوگ زندہ رہنے کے لیے ناقابل تصور چیزیں کھانے پر مجبور۔ خوراک کی کمی یہاں ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اور اوکوبو ٹیچنگ ہسپتال میں طبی سہولیات بھی محدود ہیں۔ نیالیت کو مہینوں اپنے بیٹے کو بھوکا اور بیمار ہوتے دیکھنا پڑا۔ اس رپورٹ کی فلم بندی کے 2 ہفتے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ وینزویلا میں دارالحکومت کے قریب آنے والے 2 طاقتور زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 235 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ دوسری جانب امدادی کارکن ملبے میں دبے افراد کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کراکس اور قریبی ساحلی شہر لاگوائرا میں منہدم ہونے والی عمارتوں میں ملبے تلے دبے لوگوں کی مدد کے لیے آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ بہت سے افراد بے گھر ہو گئے ہیں یا تباہ شدہ اور غیر محفوظ عمارتوں میں رہنے سے خوف زدہ ہو کر سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔
weón! ¡Mi mamá! अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के मुताबिक बुध के रोज आने वाले पहले जलजिले की शिद्दत 7.2 थी और इसके चंद ही सेकंड बाद इससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का दूसरा जलजिला आया। पहला जलजिला जमीन की सतह से 20.3 किलोमीटर नीचे जबकि दूसरा 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। वेनेजुएला की कौमी असेंबली के सदर होर्खे रोड्रिगेज ने जुमेरात को बताया कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। याद रहे कि इससे कबल वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए कई ममालिक ने ताउन की पेशकश भी की है, जिनमें अमरीका की जानिब से $15 करोड़ की इमदाद का ऐलान भी किया गया है। एक बयान के मुताबिक अमरीकी फौज तलाश और इमदादी टीमों की मदद और तेज रफ्तार रिलीफ ऑपरेशंस के लिए बहरी जहाज और तैयारे भेज रही है। मजीद तफसील गजनफर हैदर से। इमरजेंसी वर्कर्स वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में गिरने वाली कई मंजिला इमारतों से जख्मी लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही परेशान रिहायशियों की अपने अजीज़ों को तलाश करने की कोशिशें भी जारी हैं। चिकाओ इलाके में गिरी हुई एक इमारत के बाहर खड़े लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पुकार रहे थे, जबकि इमदादी कारकुन मलबे पर चढ़कर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। 7.2 की शिद्दत का पहला ज़िलज़िला सैन फिलिपे शहर के करीब आया, जो कराकस के मगरब में है। ये मकामी वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 6 बजे आया। इसके 1 मिनट से भी कम वक्त के बाद 7.5 की शिद्दत का एक और ज़्यादा ताकतवर ज़िलज़िला आया। Time that people were getting out the works before even that today is a holiday day here in Caracas, Venezuela. ये ऐसे वक्त में हुआ जब लोग काम नहीं कर रहे थे क्योंकि आज वेनेजुएला में छुट्टी थी। ज़लज़ले के झटकों ने बहुत जोर से शहर को हिलाया। मैंने अपने घर में चीजों को गिरते देखा। हमारी बिल्डिंग और मोहल्ले में बहुत नुकसान हुआ। मेरी पड़ोसन गिर गई और उसके बाजू टूट गए। इस तबाही की पूरी शिद्दत सामने आने में कई दिन लग सकते हैं और हुक्काम को डर है कि इसके नतीजे में हलाकतों और जख्मियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि अमेरिका ने कशीदगी कम करने के लिए ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ एक बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया है। बरतानवी दाएं बाजू की वेबसाइट को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जेडी वैंस ने बताया कि इस इंतजाम के तहत ईरानी और अमरीकी फौजी हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे, जहां वो बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ होने वाली बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि ठीक है, हम पासदारान इनकलाब का एक नुमाइंदा दोहा भेज देते हैं जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक एहलकार के साथ बैठकर मामला तय करेगा और इसी तरह हम बहुत से तनाज़ात हल करेंगे। We set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. The right mechanism to ensure the regional ceasefire. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. जेडी वैंस ने मजीद बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे राब्ते किए हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थे, जिनमें पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त बातचीत भी शामिल है। उनके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी हुकाम के साथ ऐसे मुज़ाकरात कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुए, जिनमें IRGC के साथ मुख्तलिफ नौयत की मुआशी मराहत पर बातचीत भी शामिल है। आबनाए हुर्मुज के करीब एक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने के बाद खित्ते में बहरी सलामती के हवाले से खदशात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी UKMTO के मुताबिक ओमान की बंदरगाह दिहित से जनूबी मशरक में तकरीबन 7.5 समंदरी मील के फासले पर सिंगापुर के झंडे तले चलने वाले कार्गो जहाज के दाएं हिस्से पर हमला किया गया, जिससे जहाज के पोल को नुकसान पहुंचा। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जहाज अपनी मंजिल की जानिब सफर जारी रखने में कामयाब रहा। इस वाक़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने आबनाए हुर्मुज में फंसे 11,000 से ज़्यादा मल्लाहों और सैकड़ों तिजारती जहाज़ों के इनखला का मंसूबा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। IMO के सरबराह का कहना है कि मल्लाहों की सलामती अव्वलीन तरजीह है, इसलिए इनखला का ऑपरेशन उस वक्त तक दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा जब तक वाक़े की मुकम्मल वजाहत और ज़रूरी हिफाजती ज़मानतें फराहम नहीं हो जाती। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्स ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज में सिर्फ वही बहरी रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनकी निशानदेही ईरान की जानिब से की गई है।
ईरान ने तमाम तिजारती जहाज़ों को हिदायत की है कि वो ईरानी फौज के मुकर्रर करदा मवासलाती चैनल पर राब्ता बरकरार रखें और तयशुदा रास्तों से इनहराफ ना करें। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया है कि मुकर्रर रास्तों से हटकर जहाज़रानी इंतहाई खतरनाक है और जो जहाज़ ईरानी हिदायत को नज़रअंदाज करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये ईरानी वार्निंग उस वक्त सामने आई जब हफ्ते के रोज बहरी उमूर से वाबस्ता एक बड़े ग्रुप ने जहाज़ों को मुतबादिल जनूबी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया था। ग्रुप का कहना था कि ओमान के समंदरी इलाके से मुत्तसिल जनूबी रास्ता बारूदी सुरंगों से पाक है, लिहाजा जहाज़ अपने सिग्नल फाल रखते हुए वहां से गुजर सकते हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान ने आबनाए हुर्मुज को तिजारती आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलने के हवाले से 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत ईरान ने 60 रोज तक तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त में ताउन की यकीन दहानी कराई थी। ताहम ईरान के हालिया बयानात से जाहिर होता है कि वो आबनाए हुर्मुज के अहम समंदरी रास्ते पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है और अपनी मंजूरी के बगैर किसी मुतबादिल रास्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उधर बहरी उमूर से वाबस्ता एक बड़े बैनुल-अक़वामी ग्रुप ने जहाज़ों को ओमान के समंदरी इलाके से मुत्तसिल जनूबी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है, जिसे बारूदी सुरंगों से पाक करार दिया जा रहा है। समंदरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले इदारे मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है और 90 से ज़ायद जहाज़ इस रास्ते से गुजरे हैं। ताहम ये तादाद जंग से पहले रोजाना गुजरने वाले 100 से ज़ायद जहाज़ों से अब भी कम है। दरी असना अमेरिका ने मई में ईरान की मुतालिका अथॉरिटी पर पाबंदी आयद करते हुए खबरदार किया था कि वाशिंगटन आबनाए हुर्मुज में ईरान की जानिब से किसी किस्म का टैक्स या फीस वसूल करने का निज़ाम कबूल नहीं करेगा। बहरीन के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अमरीका ये तस्लीम नहीं करेगा कि आबनाए हुर्मुज किसी एक मुल्क की मलकियत है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ अमन मुआहिदा तो चाहता है, लेकिन ऐसा कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा जिसमें उसके कौमी मफादात पर समझौता करना पड़े। बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद ने ओमान की जानिब से नए महफूज बहरी रास्ते के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस इकदाम से खित्ते में समंदरी तिजारत को मजीद महफूज बनाने में मदद मिलेगी। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर वाशिंगटन डीसी में अमरीकी महकमा खारिजा में शुरू हो गया है। यह बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी सिफारती हल तलाश करने की कोशिशें कर रहा है, जबकि दूसरी जानब इसराइल लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए है, जिससे ये सवाल उठता है कि आया ये मुज़ाकरात कोई देर पा सियासी हल निकाल सकेंगे या नहीं। अमेरिका के दबाव पर लेबनानी हुकाम ने अप्रैल में वाशिंगटन में इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए थे। मुज़ाकरात पर तबसरा करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों हमसाया मुमालिक एक पुख्ता इरादे के करीब पहुंच रहे हैं। Today will be the third day of 3 days of talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of interest of intent between the two countries that I think begin to outline a promising. बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद ये यकीनी बनाने के लिए कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, एक बहुत मजबूत तस्दीकी निज़ाम की ज़रूरत है। जापान में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ग्रोसी का कहना था कि उनके ख्याल में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे का मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की जानिब ना बढ़े। उनका कहना है कि ईरानी हुकूमत पहले ही वाज़े कर चुकी है कि इसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ ऐलान काफी नहीं, हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो एक निहायत मजबूत तस्दीकी निज़ाम कायम करना होगा। As you know, a memorandum of understanding was subscribed by the two presidents, by President Donald Trump and President Pezeshkian from Iran, and this agreement expressly indicates that the nuclear part will be supervised, monitored by the IAEA. राफेल ग्रोसी का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अबूरी अमन मुआहिदा IAEA के इंस्पेक्टरों को ईरान की जोहरी तनसीबात तक रसाई हासिल करता है। ग्रोसी का यह बयान तेहरान की जानिब से उस ऐलान के बाद सामने आया है कि कुछ अहम मुकामात मुआयनाकारों के लिए उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक अमेरिका के साथ हतमी मुआहिदा नहीं हो जाता और पाबंदियां खत्म नहीं कर दी जाती।
जापान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रोसी का कहना था कि एक मुआहिदा मौजूद है और इस पर अमल दरामद के लिए बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को रसाई और मुआयना करने की जरूरत होगी। हमें उम्मीद है कि हम जल्द वहां जा पाएंगे। फिलहाल ईरान की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताहम ईरान पहले ही कह चुका है कि IAEA के जोहरी मुआयनाकारों की वापसी अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात और मुमकिना हतमी मुआहिदे का हिस्सा होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाली मुफाहमत की बुनियाद पर तवक्को है कि दोनों ममालिक 2 माह की बातचीत के बाद एक हतमी मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे। Clear statements from one or the other, or contradictory, I should rather say, contradictory statements owe a bit to that factor, that this is political positioning. But in reality, there is an agreement. And to comply with that agreement, the IAEA will have to have access and inspect. और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नजर डाल रही हैं समरा फातिमा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में एक इंतखाबी मुहिम के अंदाज का जलसा मुनक्किद किया। इस तकरीब में स्टेल्थ तैयारों की परवाज, अस्करी बैंड्स और सदर ट्रंप का खिताब शामिल था। ये सब अमरीका की 250 साला सालगिरह की तकरीबात का हिस्सा हैं। अमरीकी कंपनी एंथ्रोपिक ने चीनी कंपनी अली बाबा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने नाजायज़ तरीके से उसके क्लॉड AI मॉडल की सलाहियतें चुराईं। कंपनी के मुताबिक अली बाबा से मुंसलिक अफराद ने हज़ारों जाली अकाउंट्स के जरिए क्लॉड के साथ तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख मरतबा तबादला किया। करबोबला के मैदान से तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर कैरेबियन के जजायर में आज भी गम हुसैन एक मुनफरिद अंदाज में जिंदा है। वेस्ट इंडीज के ममालिक खसूसन ट्रिनिडाड, गियाना और जमैका में 2 सदियों से जायद अरसे से मुहर्रम की एक रिवायत अदा की जा रही है, जिसे मुकामी तौर पर हुसे या होसे कहा जाता है। मुकामी लोग कई हफ्तों तक मेहनत करके लकड़ी, सरकंडो, गत्ते और धात से रंगारंग ताजिए तैयार करते हैं, जो करबोबला में हजरत इमाम हुसैन के रोजे की अलामती शबीहें समझी जाती हैं। ये रिवायत उन हिंदुस्तानी मजदूरों के जरिए कैरिबियन पहुंची जो 19वीं सदी में बरतानिया की सल्तनत के मुख्तलिफ नौ आबादियाती इलाकों में काम करने के लिए मुंतकिल हुए थे। इन मजदूरों में मौजूद उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे, जो अपने साथ अपनी मजहबी और सकाफती रिवायात भी लेकर गए। वक्त गुजरने के साथ साथ हुसे सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं रही, बल्कि मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोगों के दरमियान यकजहती, इज्तिमाई शनाख्त और बाहमी एहतराम की अलामत बन गई। यौम आशूर के मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जाते हैं, ढोल बजते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं और मुख्तलिफ मजहबी पस मंजर रखने वाले अफराद मिलकर इस सोग में शरीक होते हैं। मुसलमान इस तकरीब में मरकजी किरदार अदा करते हैं, जबकि हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग ताजियों की तैयारी, जुलूसों के इंतज़ाम, खुराक की फराहमी और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक 19वीं सदी में हुसे की तकरीब नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत भी बन गई थी। सन 1884 में ट्रिनिडाड में बरतानवी हुकाम ने एक जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस फायरिंग से कम अज कम 22 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। इस वाक़े ने हुसे को गम हुसैन के साथ साथ इत्तेहाद और मज़ामत की एक ताकतवर अलामत में भी तब्दील कर दिया। मुहर्रम की रसूमात के इख्तिताम पर ताजियों को समंदर के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये लम्हा उन लोगों के लिए इंतहाई जज्बाती होता है जिन्होंने कई हफ्तों और महीनों की मेहनत और अकीदत से इन्हें तैयार किया होता है। यूं हर साल कैरिबियन के पुरसुकून पानियों में ये ताज़िए अपनी मुख्तसर जिंदगी मुकम्मल कर लेते हैं, मगर करबोबला की याद, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनके पैगाम हक को इंसाफ को एक नई नस्ल तक मुंतकिल करते रहते हैं।
अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत में शामिल 3 शिया हज़ारा वज़रा में से एक नायब वज़ीर मदर अली करीमी बामियानी ने अफगानिस्तान की शिया बिरादरी के साथ मुबैना नारवा सलूक और आशूरा तकरीबात पर आयद पाबंदियों पर वज़ीर इंसाफ शेख अब्दुल हलीम शरी को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया है। काबुल में शिया अज़ादारों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने शिया और हज़ारा बिरादरी से माजरत का इज़हार करते हुए कहा कि उनकी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। बैरून मुल्क अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल, हरात और बामियान में आशूरा की तकरीबात, जुलूसों, झंडों और बैनर्स पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। इतलात है कि काबुल में कई शिया अफराद को मुहर्रम के झंडे लगाने पर हिरासत में लिया गया है, जबकि शिया नाजरीन के लिए मखसूस तमद्दन टीवी की नशरियात भी मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब तालिबान हुकाम इन इकदामात को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सिक्योरिटी इंतजामात करार दे रहे हैं। ताहम नाक़दीन का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद अज़ादारों की निगरानी और अवामी इज्तिमात को महदूद करना है। یورش گروه طالبان به تلویزیون تمدن یک عمل غیر انسانی است و ایران باید گفت که सामीन, मुहर्रम का तसव्वुर मरसिया के बगैर नामुमकिन मालूम होता है, लेकिन मरसिया क्या है, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, जानिए महताब आलम की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम फैज़ बाखर है और मेरे वालिद नवाब बाखर अली ख़ान रवीश लखनवी जो एक मरसिया ख़ां भी थे और मरसिया निगार भी थे, वो इस इदारे जिसके तहत ये मजलिसें हो रही हैं, अगर आप कह सकते हैं वो बानी सानी थे, यानी कि इसके जो बानी थे हाफिज़ अली साबिर साहब मरहूम थे, और इसके बाद मेरे वालिद माजिद साहब ने और उनके अहबाब ने मिलकर इस इदारे को क़ायम किया और इस सिलसिले में कोशिश की। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिसें फिर से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं और अच्छी तरीके से हो रही हैं। तो मैंने तकरीबन मैं बचपने से ही तहतुल अफ़सानी करता हूँ। वही वालिद साहब चूँकि हमारे इलाक़े में दौरे की मजलिसें होती थी, दौरे की मजलिसें उसे कहते हैं जो मुख्तसर मजलिसें होती हैं, एक के बाद एक 5-10 मिनट की मजलिसें। तो उस दौर में ज़ाकिरीन होते नहीं हैं उस वक्त में, यानी कि जो ज़ाकिर मजलिसें पढ़ते हैं वो होते नहीं थे। तो हम लोगों को आमादा किया गया, मरसिये दिए गए, तैयार किया गया बचपने से, तो धीरे धीरे पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते बाकायदगी से 1 घंटे की मजलिसें पढ़ने लगे। ये जो लफ्ज़ है मरसिया, तो इसके मतलब ही है लैमेंटेशन, मतलब गिरिया करना किसी की मौत के ऊपर, या कोई भी ऐसा सानेहा है उसके ऊपर जब गम का इजहार करते हैं, वही मरसिया उसी से निकला है ये। और ये शुरुआत इसकी बेसिकली अरबी पोइट्री से ही हुई है, और फिर वहाँ से ईरान पहुँचा, और ईरान से एक तरह से ये हिंदुस्तान आया मरसिया। और यूँ तो मरसिया किसी भी मरने वाले के लिए जो नज़्म कही जा रही है वो मरसिया है। जैसे अरबी में बड़े बड़े बादशाहों, बड़े रऊसा, उनके लिए जो नज़्म कही जा रही है वो मरसिया है। फ़ारसी में भी बहुत मरसिए इस तरह से हैं, उर्दू में भी शुरू में ऐसे मरसिए रहे, और लेकिन ये ख़ास उर्दू की बात है कि मरसिया लफ्ज़ बिल्कुल इमाम हुसैन और करबला के लिए एक तरह से रिज़र्व हो गया। तो अब जब हम कहते हैं कि मरसिया, तो यही माना जाता है कि ये करबला के शहीदों के लिए कही गई नज़्म है मरसिया। आज आप यहाँ लखनऊ में जो आपने मरसिया ख़ानी देखी है, तो इसका अगर बाकायदगी से आगाज़ देखा जाए तो दक्कन से, यानी कि जो आपका हैदराबाद इस दौर में कहलाता है, वहाँ से। चूँकि वहाँ के जो रूलर्स थे, फरमारवा थे, वो शिया थे, तो और ज़ाहिर है कि इसकी वजह से वहाँ मरसिये की मजालिसें होती थी, अज़ादारी होती थी, उसको परवान चढ़ाया गया, तो तभी मरसिया भी परवान चढ़ा। और लखनऊ आते आते ये बिल्कुल अपने पीक पर पहुँच गया, बामे उरूज पर पहुँच गया। तो लखनऊ में आप देखिए बहुत शानदार इमाम बाड़े हैं, यहाँ की आज़ादारी
پورے ساؤتھ ایشیا کی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا مرکز ہے. تمام جو پورے ساؤتھ ایشیا میں عزاداری ہوتی ہے ان کی نظر لکھنؤ پر رہتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیسے عزاداری ہو رہی ہے. تو پھر وہاں سے انسپائر ہو کے دوسری جگہ بھی. تو اس میں اودھ کے نوابین اور بادشاہوں نے مرثیے کو بہت زیادہ سراہا، اس کی بہت زیادہ انہوں نے سرپرستی کی. اس لیے یہاں ایک سے ایک باکمال مرثیہ گو جو مرثیہ لکھتا ہے، بڑے باکمال مرثیہ گو اور مرثیہ خان بھی یہاں پیدا ہوئے. وہ ایک باقاعدہ یہاں آرٹ بن گیا لکھنؤ میں، اودھ میں، مرثیہ خانی. اس کے لیے کتابیں لکھی گئیں، باقاعدہ استاد تھے، شاگرد تھے کہ مرثیہ کیسے پڑھا جائے اور ممبر کے اوپر کیسے بیٹھیں اور بستہ جس میں مرثیہ رکھا ہوا ہے وہ کیسے پکڑا جائے، اس ہاتھ میں کہ اس ہاتھ میں یہاں پر رکھیں کہ پیر قریب رہیں کہ تھوڑے دور رہیں. یہ تمام اس کے آداب یہاں لکھنؤ میں اس کے پورے ڈیولپ ہوئے کہ مرثیہ خوانی کیسے کی جائے. تو وہ ایک اتنا زبردست فارم، اتنا زبردست آرٹ بنا لکھنؤ میں، اور اس کے جو کہہ سکتے ہیں آپ کے سب سے بڑے اور سب سے باکمال مرثیہ گو، مطلب مرثیہ کہنے والے، اور مرثیہ خان، مرثیہ پیش کرنے والے، مرثیہ پرفارم کرنے والے، اس میں دو نام ہیں، مرزا دبیر اور میر انیس. وہ اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ مرزا دبیر زیادہ بڑے ہیں یا میر انیس. یہ ہر جتنی بھی فیلڈز ہوتی ہیں، آرٹ فیلڈز، اس میں یہ ایک کمپٹیشن رہتا ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے. لیکن یہاں لکھنؤ میں اتنا زبردست وہ کمپٹیشن ہو گیا تھا کہ لکھنؤ باقاعدہ دو گروپ میں بٹا ہوا تھا کہ ایک گروپ کہتا تھا نہیں میر انیس زیادہ اچھے ہیں، ایک کہ مرزا دبیر زیادہ اچھے ہیں. میر انیس کے ماننے والے انیسیے کہلانے لگے اور مرزا دبیر کے ماننے والے دبیریے. یہ انیسیے ہیں، یہ دبیریے ہیں. تو وہ فارم بنی یہاں پر ایک طرح سے، اور اس کا پڑھنے کا پورا اسکول وہ یہاں ڈیولپ ہوا. اور اس میں سب سے خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مرثیہ خوانی اور مرثیہ نگاری ابھی اور کہیں نہیں ملتی ہے. عرب سے شروع ہوا، اوریجن اس کا عرب ہے، لیکن ابھی عرب میں آپ کو مرثیہ خوانی نہیں ملے گی. وہاں سے ایران پہنچا تو ایران میں ابھی مرثیہ خوانی نہیں ہے. تو ابھی یہ ایک دم خاص ہماری ہندوستانی چیز ہے، مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی. تو وہ اس لحاظ سے یہ ایک فارم ہے جو بالکل پوری طرح سے ہماری ہندوستانی گنگا جمنی اس تہذیب کی ایک چیز ہے. یہ مرثیہ بھی ایک زمانہ تھا، میں نے جو بچپنے میں دیکھا تھا ایک مرتبہ بالکل بہت ہی مختصر، بہت محدود ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں کافی اس میں فروغ ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا. بالکل بہت لوگ کر رہے ہیں اس وقت، بہت سارے نوجوان ہیں جو مرثیہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. 18 سال میرا خود بیٹا ماشاءاللہ سے 10 سال کے ہیں اور جو ہے وہ بھی خوب پڑھتے ہیں اور سننے کا بھی بڑا شوق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وعدہ ہے، یہ پورا ہوتا رہے گا. انڈین شہر ایودھیا میں واقع رام مندر ایک بار پھر خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، مگر اس بار وجہ مذہبی تقریب یا افتتاحی تقریب نہیں، بلکہ اسے ملنے والے عطیات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں دسمبر 1992 تک بابری مسجد قائم تھی اور جس کی جگہ تعمیر ہونے والا رام مندر برسوں تک انڈیا کی سیاست، مذہب اور سماجی مباحثت کا مرکز رہا. اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ عقیدت مندوں کی جانب سے دیے گئے عطیات کس طرح استعمال ہوئے اور ان الزامات کے سیاسی اور سماجی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے نائلہ خواجہ کی یہ رپورٹ.
इंडिया के शहर अयोध्या में मौजूद राम मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये मंदिर उसी मकाम पर तामीर किया गया है जहां दिसंबर 1992 तक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यहां राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हो गया। जनवरी 2024 में मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। करोड़ों लोगों की अकीदत, हजारों करोड़ों रुपए के डोनेशंस और अब माली बेकायदगियों के इल्जामात अयोध्या के राम मंदिर को इंडिया के सबसे अहम मजहबी और सियासी प्रोजेक्ट्स में से एक समझा जाता है। लेकिन अब उसको दिए गए डोनेशंस और उनके हिसाब किताब पर सवालात उठ रहे हैं। जब हम लोगों ने ये टीवी के अंदर सारी न्यूज़ देखी और सारे वीडियो देखे तो लगा कि कहीं हमारी चांदी भी गलत जगह तो नहीं चली गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये अपील की कि हमें भी अपनी रसीद मिलनी चाहिए और वो चांदी कहाँ लगाई है अगर हमें बता सके तो हम अपने श्रद्धालुओं को बता सकें जिन्होंने 1, 2, 5, 10, 11 ईंटें अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों से डोनेट की। अब वो लोग फ़ोन करके हमें पूछते हैं क्योंकि हमने विश्व सिंधी सेवा संगम के माध्यम से पूरे सिंधी समाज को एकत्रित करके ये सारी 200 किलो चांदी दी। हमें अपनी रसीद तो मिलनी चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे में बदअवानी के इल्जामात के बाद मकामी आवाम में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दान का चीज ही दान ही में खर्च होना चाहिए। दान का चीज ये नहीं है कि हम ले जा करके अपने घर मजा मारे, ये फर्ज नहीं है दान का। अयोध्या जो है विश्व स्तरीय नगरी हो गई है, पूरे विश्व की निगाह है। ये जो है एक तरह इनके लिए कलंक है, गवर्नमेंट के लिए भी और कमेटी वालों के लिए भी। इल्जामात है कि करोड़ों की रकम के कैश डोनेशंस और कीमती नजरानों के इंतजाम में बेकायदियां हुई हैं। लेकिन ये रकम या गड़बड़ी कितनी बड़ी है, इसकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई है। हालिया रिपोर्ट्स में कैश काउंटिंग के निज़ाम, ट्रस्ट से जुड़े अफराद की तफ्तीश और मंदिर के एक मुलाजिम के घर से नकदी बरामद होने के दावे भी सामने आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भक्तों यानी अकीदतमंदों की तरफ से दिया गया पैसा कहाँ गया और उसका हिसाब कौन देगा। 2019 के अयोध्या फैसले के बाद 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त से ट्रस्ट को सिर्फ कैश डोनेशन की सूरत में तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जबकि जेवरात और दूसरे नजराने इसके अलावा हैं। तनाजा उस वक्त बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव और अयोध्या के साबिक MLA पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर को मिलने वाली डोनेशंस में स्कैम हुआ है। इन इल्जामात को कुछ मकामी बीजेपी रहनुमाओं और राम मंदिर तहरीक से जुड़े अफराद ने भी उठाया। राम मंदिर के विषय में जो भी वहाँ दान दक्षिणा आती है तो जो लोग उसमें से लेते हैं तो ये पूरा धन जाना चाहिए बैंक, वो नहीं जा रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक है हमने वो बात कह दी कि सब जितना आए पैसा वो सीधा बैंक जाए। दूसरी तरफ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इन इल्जामात को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिट्स में कैश हैंडलिंग के निजाम पर सवालात उठाए गए। रिपोर्ट्स ने 10 संदूकों के रिकॉर्ड और 7 से 8 महीने की CCTV फुटेज के मुतालिक बेकायदियों का दावा किया है। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट्स आवाम के लिए दस्तयाब नहीं है और इन दावों की तस्दीक अभी होनी बाकी है। 13 जून 2026 को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मामले की जांच के लिए 3 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तश्कील दी। टीम को 15 दिन में ये पता लगाना था कि माली गड़बड़ियां हुई और अगर हुई तो उसके जिम्मेदार कौन हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक पिटीशन में इस मामले में FIR दर्ज करने और इंडियन तफ्तीशी इदारे CBI की क़यादत में जांच का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की SIT ने FIR के बगैर ही जांच शुरू कर दी, जबकि मामले की तफ्तीश एक आज़ाद इदारे को करनी चाहिए। अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमती SIT की आज़ादी पर सवाल उठाए हैं। आलमी दर्जा बंदी में इंडिया के पासपोर्ट की मुसलसल गिरावट की वजूहात कुछ भी हों, मगर अब इंडिया की वजारत खारजा के हालिया बयान ने एक बुनियादी मगर पेचीदा सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया
और वो ये कि क्या इंडियन पासपोर्ट वाकई किसी शख्स की शहरियत का हतमी सबूत है। 24 जून को योम पासपोर्ट सर्विस के मौके पर वजारत खारजा ने वाजे किया कि इंडियन पासपोर्ट दरअसल एक सफरी दस्तावेज है, ना कि शहरियत का हतमी सबूत। ये मौक़िफ़ उस वक्त मज़ीद नुमाया हुआ जब वजारत खारजा के एक सीनियर अफसर ने रोज़नामा दी हिंदू के रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए वजाहत की कि पासपोर्ट अपनी नोयत में एक सफरी सहूलत है जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी सफ़र को मुमकिन बनाना है, ना कि किसी शख्स की शहरियत को कतई तौर पर साबित करना। उनके मुताबिक अगरचे बैरून मुल्क सफ़र के दौरान पासपोर्ट किसी फ़र्द की कौमियत की तस्दीक करता है, ताहम इसे शहरियत की मुकम्मल और हतमी दस्तावेज नहीं समझा जा सकता। यही बुनियादी फ़र्क इसे दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात से अलग करता है। ये वजाहत एक ऐसे सवाल के जवाब में सामने आई जब उनसे पूछा गया कि आया वोटर लिस्ट की खसूसी नज़र-ए-सानी यानी SIR के दौरान अगर किसी शख्स का नाम फहरिस्त से खारिज हो जाए तो क्या वो अपना इंडियन पासपोर्ट बतौर सबूत पेश करके इस फैसले को चैलेंज कर सकता है या नहीं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस वक्त वोटर लिस्टों की नज़र-ए-सानी का ये अमल इंडिया की 16 रियासतों में जारी है, जिसके बाइस शहरियों की शनाख्त और शहरियत से मुतल्लक सवालात पहले ही ज़ेरे बहस हैं। वज़ारत खारजा के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया, सियासी हलकों और कानूनी माहिरीन में नई बहस ने जन्म लिया है। सबसे अहम सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर पासपोर्ट को शहरियत का हतमी सबूत नहीं माना जाता तो फिर किसी शख्स को इंडियन शहरियत साबित करने के लिए कौन सी दस्तावेज फैसलाकुन हैसियत रखती हैं। इंडियन मीडिया में शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत खारजा के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि इंडियन पासपोर्ट को शहरियत साबित करने वाले दस्तावेज के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बयान इस तनाज़े के दरमियान सामने आया है जब बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया मुतअद्दिद लोगों के बारे में इंडियन शहरी न होने का दावा करके उन्हें ज़बरदस्ती सरहद पार भेजने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साबिक़ सेक्रेटरी खारजा निरुपमा मेनन राव ने BBC हिंदी से बात करते हुए कहा कि वजारत खारजा का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर दुरुस्त है क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत जारी किया जाता है, जबकि शहरियत सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत कंट्रोल की जाती है। उनका मज़ीद कहना है कि एक कानून पासपोर्ट को कंट्रोल करता है जबकि दूसरा कानून किसी शख्स की कानूनी हैसियत या शहरियत का तयन करता है। इस बारे में मारूफ लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने एक्स पर लिखा, तो क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये सफरी दस्तावेज़ उन लोगों को भी जारी कर रही है जिनके इंडियन शहरी होने के बारे में वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है। एक और एक्स यूज़र ब्रजेश ने लिखा, अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर कार्ड सभी जाले बनाए जा सकते हैं तो फिर इस बात की क्या ज़मानत है कि NRC का रजिस्टर भी जाली नहीं होगा। और शैला लिखती हैं, NRC में रजिस्ट्रेशन के वक्त तो वो खुद ही पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजात मांगते हैं, फिर ये कैसी उल्टी मंतक है। जनूबी सूडान में भूख इस हद तक बढ़ चुकी है कि बाज़ लोग जिंदा रहने के लिए वो चीज़ें खाने पर मजबूर हैं जो आम हालात में नाकाबिले तसव्वुर हैं। बरसों के तनाज़ात और मौसमियाती तब्दीली ने लाखों जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। देखिए कल की दान की रिपोर्ट जिसे पेश कर रहे हैं खालिद करामत। ये ओकोबो है, जनूबी सूडान के दूर दराज इलाके में वाक़ एक ज़िला जहाँ तक रसाई बहुत मुश्किल है। यहाँ अक्सर खुश्कसाली और सैलाब दोनों का ख़तरा रहता है। ये इलाका बार बार होने वाले तशद्दुद का मरकज़ भी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ रहने वाले लाखों लोग अक्सर किसी न किसी आफत से बचने के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये ख़ानदान हमसाया मुल्क इथियोपिया से वापस आ रहे हैं जहाँ उन्होंने पनाह ली थी। खुराक की कमी यहाँ एक देरीना मसला है और ओकोबो टीचिंग हस्पताल में तिबी सहूलियात भी महदूद हैं। नियालित को महीनों अपने बेटे को भूखा और बीमार होते देखना पड़ा। इस रिपोर्ट की फिल्मबंदी के 2 हफ्ते बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। मैं जानती थी कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने तकलीफ उठा रहा है। वो भूख से रोता था, मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं उसे क्लिनिक ले गई जहां उसे फ्लूइड्स दिए गए, लेकिन उसी रोज़ उसकी मौत वाक़ई हो गई। जो कुछ मेरे बच्चे के साथ हुआ उसके बाद मैं ठीक से सोच भी नहीं सकती। नियालित यहाँ मौजूद बहुत से लोगों की तरह कई बार बेघर हो चुकी हैं। हुकूमती अफवाज और मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान शदीद लड़ाई ने इमदादी तंजीमों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हस्पताल लूट लिए गए और खेत जला दिए गए। यहाँ झड़पों में उस वक्त शिद्दत आई जब जेल में कैद एक अपोजिशन लीडर के हामी 2 मुसल्लह ग्रोहों ने हमले करके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया।
فوج نے فضائی حملوں اور بڑی تعداد میں فوج کی تعیناتی کر کے جواب دیا۔ خوراک کی کمی مزید بڑھ گئی ہے اور بہت سے لوگ گھاس اور کنول کے پھول کھانے پر مجبور ہیں۔ ہم گھاس کے پتوں پر گزارا کرتے ہیں اور کبھی کبھار 4 دن تک ہمارے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بچوں کے لیے کوئی ایسے پودے تلاش کرنے نکلتے ہیں جنہیں پکا سکے۔ میرا بچہ بھوک سے روتا ہے۔ جب میں اسے دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ چیختا ہے کیونکہ اسے کافی دودھ نہیں ملتا۔ سوچے میں ایک دودھ پلانے والی ماں ہوں اور کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ افریقہ کے اس حصے میں خوراک کی عدم دستیابی کا بحران صرف جنوبی سوڈان تک محدود نہیں ہے۔ ہمسایہ ملک سوڈان کے کچھ حصوں میں قحط کا اعلان ہو چکا ہے اور صومالیہ میں لاکھوں افراد جن میں بچے بھی شامل ہیں بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن جنوبی سوڈان کے لیے جو تقریباً 15 سال پہلے ایک آزاد ملک بنا، بھوک ایک مستقل مسئلہ بن چکی ہے، جس کی وجہ ملک میں لمبے عرصے سے شورش اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں۔ اقوام متحدہ کے 3 اداروں کی ایک حالیہ رپورٹ سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ بہت سے لوگ جن میں 20 لاکھ سے زیادہ جنوبی سوڈانی بچے شامل ہیں بھوک کا شکار ہیں۔ ملک کا انتہائی کمزور سڑکوں کا نظام امداد کی ترسیل کو مشکل بنا دیتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ریکارڈ کرنا بھی دشوار ہے کہ کتنے لوگ بھوک سے پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں اموات کا باقاعدہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن زمینی سطح پر ہمیں کمیونٹی کے لوگ، خاص طور پر خواتین سے پتہ چلا ہے کہ کچھ نے اپنے بچے کھو دیے ہیں۔ ہمیں جنوبی سوڈان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں عالمی توجہ، حمایت اور مدد کی اشد ضرورت ہے تاکہ حالات میں بہتری آ سکے۔ فلاحی اداروں کے کارکنان اور سرکاری اہلکار فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ دنیا کے کم عمر ترین ملک کے نوجوان بھوک سے مر رہے ہیں اور بروقت امداد کی آمد زندگی اور موت کے درمیان فرق ثابت ہو سکتی ہے۔ کل کی دان کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 غیر ملکی آئل ٹینکرز جو بغیر اجازت آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، پاسداران انقلاب کی وارننگ کے بعد واپس چلے گئے ہیں۔ گزشتہ روز سنگاپور کے جھنڈے والے ایک جہاز پر نامعلوم سمت سے داغے گئے ایک پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز میں 11,000 ملاحوں کو بچانے کا اپنا مشن معطل کر دیا تھا۔ تہران نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اس نے ایران کی اجازت کے بغیر اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کے خلاف متعدد وارننگز جاری کی ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع نیلم میں چک مقام پر 12 جون سے جاری احتجاجی دھرنا اگلی کال تک مؤخر کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مرکزی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جبکہ بازار بھی معمول کے مطابق کھل گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک راولا کوٹ میں یہ احتجاج جاری ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر 9 جون سے ریاست بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال جاری تھی، جس کے دوران وادی نیلم میں مظاہرین نے چک مقام پر ضلع کی واحد مرکزی سڑک بند کر رکھی تھی۔ اب دھرنا ختم ہونے کے بعد ضلع ہیڈ کوارٹر 8 مقام سمیت دیگر بازاروں میں تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں اور ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ تاہم ضلع نیلم سے مظفر آباد جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ تاحال بحال نہیں ہو سکی، جبکہ کرائے پر چلنے والی اور نجی گاڑیاں آمد و رفت کر رہی ہیں۔